Namaste and welcome everyone to my YouTube channel Commerce Studio by Priya. In this channel, I will be posting the videos on the various commerce subjects, primarily beginning with the income tax, economics, financial management, and if you want any other topic related with the commerce subject, you can send me in the comment section. I will be posting the same video. So today we will begin the basic concept of the income tax. Basically in this lecture I am going to discuss with you the various definitions of the income tax, and this will be helpful in the theory as well as the practical aspects. So firstly begin with the meaning क्या है इनकम टैक्स का? इनकम टैक्स, टू वर्ड्स, टैक्स जो इनकम के ऊपर लगेगा, इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिविजुअल एंटिटी, चाहे इंडिविजुअल की इनकम है चाहे कोई एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर अर्निंग द इनकम, दे आर लायबल टू पे द टैक्स. Income tax is a direct tax. Burden cannot be shifted to the another person, any other person, like in case of the indirect GST. And income tax is governed by the Act 1961 and is applicable to the whole of the India, even it extends to the Jammu and Kashmir. So initially it was started in the year 1860. Basically, it was started when the British Empire suffered a huge military losses in the mutiny of 1857, and then Sir James gave it an idea, why not to collect 1 rupee tax from the each citizen of India, and then they got the new source of income for the government, which they can use for the development purposes. तो होता क्या है, हर साल जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसमें अमेंडमेंट्स की जाती हैं, और जो अमेंडमेंट्स होती हैं उसके अगली 1 अप्रैल से लागू हो जाती है. जो इनकम हमने 1 अप्रैल के बाद अर्न करनी होती है उसके ऊपर वो सारे चेंजेस जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं. दीज आर दी मेन डेफिनेशंस and we will discuss this definition one by one. First definition is the assessee. Who is assessee? People who have earned income against whom proceedings are initiated, even people responsible for deducting the tax. So any person, assessee could be individual, he could be Hindu undivided family, firm, any type of firm, it can be LLP, limited liability partnership, association of person, body of individual, local authorities, companies, artificial judicial persons. So assessee will be every person, every type of person who is earning the income and he is liable to pay the tax under this act in India. इवन द पर्सन हु अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड, कोई कोर्ट केस चल रहा है, चाहे टैक्स का चल रहा है चाहे कोई और कर रहा है, अगर वो टीडीएस काट के जमा करने के लिए लायबल है, इवन देन ही इज ट्रीटेड एज असेसी इन द आईज ऑफ इनकम टैक्स. नेक्स्ट वन इज द इनकम. अब इनकम टैक्स है, इनकम के ऊपर लगना है, तो इनकम क्या है? इनकम की जो डेफिनेशन है इनकम टैक्स में इट्स वेरी वाइड, इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, इट इज़ वेरी इंक्लूसिव. एवरी टाइप ऑफ मनी, बेनिफिट, गेन, whether received in cash or in kind, value of benefits, perquisites होते हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है बेनिफिट्स, उससे कुछ लेता नहीं है, कैश उसको कैश दे भी नहीं रहा, ले भी नहीं रहा, बट उसको सर्विसेज मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट. सो कुछ भी जो गेन बेनिफिट मिल रहा है चाहे वो कैश में है काइंड में है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर income tax. It can be salary, profit from business, capital gains, rent from house property or the commercial property, interest means बैंक से चाहे आ रहा है चाहे पोस्ट ऑफिस से आ रहा है, डिविडेंड ऑन शेयर्स जो कंपनी से मिलते हैं. सो दीज आर दी बेसिकली 5 हेड्स ऑफ द इनकम टैक्स, जिसमें उन्होंने हर तरह की इनकम को कैटेगराइज किया गया है. इसके अलावा भी नोशनल इनकम आ जाती है. नोशनल इनकम क्या होती है? जो एस्टिमेट्स के ऊपर बेस्ड होती है, जिसकी हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं होती, तो एस्टिमेट बेस पे अगर इनकम है इवन देन दैट इट इज taxable, that will be treated as income under this act. It can be gifts, winnings from the lotteries as well as the deemed incomes. Next one the previous year and next one is the assessment year. This we will do this simultaneously. Previous का मतलब पीछे वाला, assessment का मतलब आगे वाला. So previous year, assessment year, both year will be financial year. मतलब they will both start from the 1st April and end on the 31st March. So if 1st April 2024 to 31st March 2025 दिस इज द प्रीवियस ईयर, तो असेसमेंट ईयर हो जाएगा 1st April 2025 टू 31st March 2026. प्रीवियस ईयर मीन्स पीछे वाला, प्रीसीडिंग ईयर. सो प्रीवियस ईयर का रेलिवेंस क्यों है? बिकॉज प्रीवियस ईयर में इनकम जो अर्न करी जाती है दैट विल बी असेसेबल
इन दी असेसमेंट ईयर। इंडिया में रूल है एडवांस टैक्स का, प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर टैक्स सारा एडवांस जमा होना है। जैसे प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025, जो इस साल में इनकम अर्न करी गई है इसका टैक्स जो है 31 मार्च 2025 तक की जमा करना है। लेकिन रिटर्न उसके बाद जाती है ना, अप्रैल के बाद जाती है, 31 जुलाई की डेट होती है, इस साल 15 सितंबर हो गई एक्सटेंड होके, तो वो असेसमेंट ईयर हो जाएगा। तो इनकम अर्नड इन द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। सो इनकम टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द इनकम ऑफ 1 ईयर बैक, एक पिछले साल की इनकम के ऊपर बैक वाले साल के ऊपर कैलकुलेट करके असेस करके रिटर्न में फाइल किया जाता है। सो इनकम टैक्स नेक्स्ट ईयर, कुछ एक केसेस में एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शन जो है एक्सप्रेसली मेंशन है, जैसे नॉन रेजिडेंट्स के लिए है या डिसकंटिन्यूड बिजनेस के लिए है, जहाँ पे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर कुड बी द सेम ईयर, बट अदरवाइज बाकी सारे केसेस में यही रूल चलेगा, प्रीवियस ईयर पीछे वाला, असेसमेंट ईयर आगे वाला। बैक ईयर की इनकम को हमने असेस करना है अगले वाले ईयर में, टैक्स एडवांस देना है, रिटर्न असेसमेंट ईयर में फाइल होनी है। सो असेसमेंट ईयर क्या होता है, वो भी 12 महीनों का है, 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च को खत्म होगा, बट दैट विल बी द ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के इमीडिएट अगले वाला ईयर। तो 24-25 अगर प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर 25-26 है। दिस इज द रीजन कि जो चेंजेस बजट में किए जाते हैं वो 1 अप्रैल से लागू किए जाते हैं, क्योंकि जो फरवरी में चेंजेस हुए तो उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल को, उसमें जो इनकम अर्न करी जा रही है उसमें लागू होंगे। Next one is the agriculture income. Agriculture income which is derived from the land situated in India used for agriculture purposes. So ये simple words में क्या है कि agriculture land जो है इंडिया में होनी चाहिए, agriculture purposes के लिए यूज होनी चाहिए, most importantly it should be situated in the rural area। कौन सा एरिया होगा, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट्स के 8 किलोमीटर से भी बाहर होगा, वो वाला एरिया रूरल एरिया माना जाता है। और वहाँ पे अगर एग्रीकल्चर पर्पसेज, सेल ऑफ क्रॉप्स मतलब फसलें उगा के बेचने से जो इनकम आ रही है, एग्रीकल्चर लैंड को रेंट पे दिया है एग्रीकल्चर करने के लिए, उससे जो रेंट आ रहा है, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ड्वेलिंग हाउस बनाया गया है जिसमें टूल स्टोर किए जाते हैं, उससे रेंट आ रहा है, तो वो सारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। बेसिकली इसका पर्पस ये है क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, दैट्स व्हाई इट इज डिफाइंड सो दैट इट कुड नॉट बी यूज्ड फॉर द रॉन्ग पर्पस। जो एग्जैक्ट में एग्रीकल्चर इनकम होगी इस टेस्ट को पास करेगी, सिर्फ वही एग्जम्प्ट होगी। नेक्स्ट है डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम मतलब विच इज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड बट ट्रीटेड एज इनकम। अब देखो ना इसका स्कोप कितना वाइड है, हमने इनकम में डीम्ड इनकम किया था ना, तो डीम्ड इनकम जस्ट टू वाइडन द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स, ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना है, ज़्यादा इनकम को टैक्स के दायरे में लेके आना है। तो नोशनल इनकम सबसे पहले आ गई, जो एस्टिमेट भी इसमें थी, क्योंकि एस्टिमेट क्यों है, क्योंकि एक्चुअली रिसीव नहीं हुई, अगर एक्चुअली आपको रिसीव हो जाती है तो वी विल नो द डेफिनेट अमाउंट, तो नोशनल इनकम हो गई। इसके अलावा जो लीगल प्रिजम्पशन के थ्रू क्रिएट करी गई है, लीगल प्रिजम्पशन मतलब जैसे एग्जांपल है माइनर की इनकम है, माइनर इनकम तो अर्न कर नहीं रहा, पेरेंट्स ने माइनर के नाम पे, बच्चे के नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट करी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, प्रॉपर्टी को बेचा उस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो वो पेरेंट्स की इनकम मानी जाएगी, क्योंकि बेसिकली सोर्स उन्होंने अपना यूज किया ना, चाहे नाम उन्होंने बच्चे का ले लिया, मतलब नाम उसके कर दी, टैक्स इवन विदाउट द एक्चुअल रिसीव, एक्रू बेसिस पे भी ड्यू बेसिस पे भी होगी। दिस इज बेसिकली जस्ट टू प्लगिंग द लूप होल्स इन द टैक्स सिस्टम। एग्जाम्पल्स देख लो, जैसे मिस्टर बी रिसीव्स 1 लाख रुपीज इन हिज बैंक अकाउंट, लेकिन उसके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है कहाँ से आए हैं, नहीं है एक्सप्लेनेशन, तुम्हारे अकाउंट में है ना, यू आर लायबल टू पे द टैक्स। गिफ्ट्स, गिफ्ट्स वाला टॉपिक जो है डिटेल में हम करेंगे अदर सोर्सेज वाले लेक्चर में, उस चैप्टर में है या डिटेल में। तो अगर गिफ्ट 1,20,000 का फ्रेंड से मिला है, रिलेटिव से नहीं मिला, कुछ तरह के रिलेटिव से एग्जाम्प्ट है, फ्रेंड सा सारा टैक्सेबल है, तो फ्रेंड से गिफ्ट मिला है, आपने अर्न थोड़ी करा है, मिला है ना, रिसीव किया है, दैट विल बी टैक्सेबल एज डीम्ड इनकम। सो बेसिकली डीम्ड इनकम जो है टैक्स अवॉइडेंस को, इवेजन को रोकने के लिए है, फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी के लिए है, टैक्स बेस को वाइड करने के लिए है। तो डीम्ड इनकम इज फुली टैक्सेबल, जिस हेड की है उस हेड के अंदर आके ये टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है असेसी इन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब गलती, क्या गलती करी है, ए पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टैक्स, जिसको टैक्स काटना था या तो उसने टैक्स काटा नहीं है, अगर काटा है बट फेल्स टू डिपॉजिट द क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जमा करना भूल गया है, तो उस केस में वो असेसी इन डिफॉल्ट हो जाएगा। सो ए पर्सन हु फेल्स टू डिडक्ट
or deposit the tax at the source as required under this act, deducts but does not deposit it with the government within the prescribed time, that is assessee in default. So उसको हम डिफॉल्ट वाला assessee बोलेंगे जिसने टीडीएस नहीं जमा किया। एग्जाम्पल क्या है, एम्प्लॉयर ने सैलरी पे करी, एम्प्लॉय को टीडीएस नहीं काटा, अपने पास रख लिया, जमा नहीं किया। बायर ऑफ प्रॉपर्टी ने सेलर को जो पेमेंट करनी है टीडीएस नहीं काटा है। सो बेसिकली इंडिया में ना टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिस सोर्स पे इनकम राइज हो रही है ना उसी पे टैक्स काट के जमा होना है, ताकि टैक्स अवॉइडेंस को रोक सके, क्विक रिकवरी है कि जल्दी से जल्दी टैक्स जमा हो सके। तो फिर उन्हें प्रोविजंस बन गई कि अगर आप टीडीएस नहीं काटोगे तो यू विल बी अ सेसी इन डिफॉल्ट। सो इफ वन पर्सन बिकम द सेसी इन डिफॉल्ट, ही इज लायबल फॉर द पेनल्टी 1% पर मंथ फॉर फेलियर टू डिडक्ट, 1.5 पर पर्सन पर मंथ फॉर फेलियर टू डिपॉजिट दी डिडक्टेड टीडीएस। तो ये इंटरेस्ट लगेगा, इसके अलावा पेनल्टी भी है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द असेसिंग ऑफिसर। इसके अलावा एक्सपेंस भी डिसअलाउड हो जाएगा। अगर आप कोई खर्चा है जिसको जो खर्चा पे करने से पहले उसके ऊपर टीडीएस काटना था, नहीं काटा, तो वो एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस में से वो अलाउड होना मना हो जाएगा, वो डिसअलाउड हो जाएगा। रिलीफ फ्रॉम द पेनल्टी, पेनल्टी से रिलीफ तभी मिलेगा अगर टीडीएस काटोगे, उसको टाइमली जमा करोगे, या फिर आप सबूत शो कर दो, प्रूफ शो कर दो कि आपने टैक्स जो है पे किया है, टीडीएस काट के जमा किया है गवर्नमेंट के अकाउंट में। दैट कैन बी 26A सर्टिफिकेट फ्रॉम दी चार्टर्ड अकाउंटेंट। नेक्स्ट इज द ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ब्लॉक का मतलब ग्रुप ऑफ एसेट्स फॉलिंग विद इन अ क्लास ऑफ एसेट्स, टेंजिबल और इंटेंजिबल। दो तरह के ग्रुप हो सकते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट बिल्डिंग मशीनरी प्लांट फर्नीचर, इंटेंजिबल पेटेंट्स, टेक्निकल नो हो, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, फ्रेंचाइजी एक्सेट्रा। तो इनकम टैक्स में ना डेप्रिसिएशन के लिए ग्रुप सिस्टम चलता है। ग्रुप जो सिमिलर नेचर के एसेट्स हैं उनका ब्लॉक बनता है, हमने खुद से नहीं बनाना, बने हुए हैं, इनकम टैक्स ने ब्लॉक खुद से बना रखे हैं। वो ब्लॉक वाइज ही डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है, पूरे ब्लॉक के ऊपर इंडिविजुअल एसेट वाइज डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी। अगर उस ब्लॉक का रिलेटेड सेम नेचर का कोई नया एसेट आ रहा है उस ब्लॉक में ऐड होगा, अगर वो बेचा जा रहा है उस ब्लॉक में से ही माइनस होगा और टोटलिटी में हम गेन या लॉस निकाल लेंगे। जैसे कि ब्लॉक है फर्नीचर का, बिल्डिंग का, मशीनरी का, कंप्यूटर्स का, इसके अलावा ये इंटेंजिबल एसेट्स का, इस तरह से ना ब्लॉक ऑलरेडी बने हुए हैं। दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हेन वी विल डिस्कस द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो एस डेप्रिसिएशन भी जो है ब्लॉक वाइज ही कैलकुलेट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशंस. Thank you for watching as well as the listening, and if you found this useful, do not forget to like, share and subscribe. Stay updated with the more such content. Thank you and have a nice day.